Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Today we are going to host our sixth webinar with Sir Abdul Wahid. He is information security professional having 15 years of experience in the information security industry, and currently he is Chief Information Security Officer at Security Experts Pakistan. Dr. Ugar has joined the meeting, our head of the department. Sir, please unmute yourself. Assalamu alaikum. Welcome to everyone. My name is Abdul Wahid, and I am Chief Operating Officer working as in Security Experts Private Limited. Let me share my slides first so that we can go ahead with the presentation and webinar formally. Please wait for 1 minute. Yes, please. Yes, please. We are offering BS Information Security and BS Internet of Things and MS Information Security and MS IoT, as well as PhD program in Information Security. All right. That's good to know. We are newly established in Islamic University of Bahawalpur. Our most senior batch is in 5th semester. Okay. Can you please make me host so that I can share my screen? Yes, sir. I'm removing privacy. Yes, sir. Please turn on screen. Okay, I'm sure you are able to view my screen. Yes, sir. It is visible. Please start the webinar and introduce yourself. Okay. My name is Abdul Wahid, and I am a Chief Operating Officer working in Security Experts Private Limited. Recording in progress. Our main business is to provide information security services to government and government and private organizations, and to provide trainings as well. I am in training for last 5 years, providing professional trainings to government and private sector organizations for information security courses, for example, CISSP, CISM, ISO 27001, and generic information security trainings. I have been working in information security IT field since 2007. I joined my career as an IT operations officer. Later on, I joined information security industry and started developing myself in the field of information security. I've been working in disaster recovery, business continuity, GRC, and later on, I started working in providing trainings to different organizations. My today's topic is roles of artificial intelligence in cybersecurity. I'm sure all of you are from the information security batches, so most of you are well aware of what is cybersecurity, and I'm sure most of you will also know about artificial intelligence as well. So my today's talk will be by combining both of these topics together so that we can have a better understanding of where artificial intelligence can be applied in the field of cybersecurity. So this is a basic definition of cybersecurity. I want to actually build up the basic concepts first, and then we shall proceed forward to
have a detailed discussion on the role of AI in cybersecurity. Okay. मुझे बताया गया है कि ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आई एम श्योर कि हम उर्दू में अगर लेकर चलें तो इसको बेहतर होगा। बेसिक सी एक डेफिनेशन है साइबर सिक्योरिटी की, जो कि आईसाका से ली गई है। आई एम श्योर कि आपको आईसाका का पता होगा। It is actually the protection of information assets by addressing threats to information processed, stored, and transported by inter-network information systems. एक स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन अगर आप कोई देखना चाहें तो वो तो आपको शायद ना मिले। एक जेनेरिक सी डेफिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरह से इसको डिफाइन कर रही होती है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है ना वो पता होंगी। कुछ एक लॉजिकल सी एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाई गई है कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी आपस में ओवरलैप किस तरह से हो रही होती है। ये डायग्राम जो है जो ISO स्टैंडर्ड से उठाई गई है। साइबर सिक्योरिटी के कुछ बेसिक गोल्स हैं। आई मीन द प्राइमरी गोल इज टू डिफेंड नेटवर्क्स एंड सिस्टम अगेंस्ट मैलिशियस मॉडिफिकेशन एंड लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो फर्दर गोल्स हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, और अगर कोई थ्रेट्स वगैरह है उसको मिटिगेट करना है, इंटेग्रिटी ऑफ डिजिटल एसेट्स है उसको मेंटेन करना है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। कोई कॉम्प्रोमाइज आ गया किसी भी सिस्टम में या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके बाद उसको एनालाइज करना है कि कॉम्प्रोमाइज के बाद एनालाइज करना है कि क्या इसके इश्यूज क्या थे और इसको कैसे हम रेमेडिएट कर सकते हैं और आइंदा आने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। आपको पता होगा कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी है वो 3 पिलर्स हैं उसके, जिसको CIA ट्राइएड बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। जस्ट एक इसको फेवर देने के लिए कि हम साइबर सिक्योरिटी में किन 3 चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे, वो एक्चुअली ये 3 चीज़ें हैं। एप्लीकेशंस कहाँ पे हो सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की? आप में से हर एक के पास आई मीन को अपना कोई सिस्टम या लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह होगा और हर एक के पास कोई ना कोई मेलवेयर या एंटीवायरस टाइप की एप्लीकेशन ज़रूर मौजूद होगी। डिफरेंस ये है कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन जो एंटीवायरस इंस्टॉल करता है और एक आप जैसे प्रोफेशनल एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, दोनों के इंस्टॉलेशन में या दोनों की कोई भी सोल्यूशन की इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि ये कोई भी फॉर एग्जांपल एंटीवायरस है वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा होगा, इसकी फीचर्स क्या हैं, इसमें मुझे किस चीज़ को अलाउ करना है, किस चीज़ को अलाउ नहीं करना। इसकी जब न्यू परचेज करना है तो उस वक्त परचेज करते हुए किन चीज़ों को देख रहे होते हैं हम लोग। मतलब ये एक माइंड है जो कि आपका चेंज हो जाता है बिल्कुल, कि आपने साइबर सिक्योरिटी को जहन में रखते हुए कैसे काम करने। बिल्कुल इसी तरह से कोई बिजनेस ऑपरेशंस वगैरह अगर रन करने हैं तो उसके लिए बेसिक सी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिजनेस ऑपरेशंस को सिक्योर कैसे करना है, क्योंकि बिजनेस ऑपरेशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंडेंट होते हैं आईटी के ऊपर या दूसरी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो कि इंटरनेट को यूज कर रही होती है। तो अगर बिजनेस ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट करना है तो इसका मतलब है कि उन इंफॉर्मेशन एसेट्स को भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो कि बिजनेस ऑपरेशंस यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की एप्लीकेशन जो है ना गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस में होती है। कंप्लायंस की एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल PCI DSS की एग्जांपल आप लोगों के सामने है। यूरोप में अगर जाएं तो GDPR कंप्लायंस जो है वो एक रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। इसके अलावा सीम सॉल्यूशंस अगर आपने इंप्लीमेंट करने हो वहाँ पे जरूरत होती है। फायरवॉल्स स्पेसिफिकली हम जो बात कर रहे हैं वो हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्क पेरीमीटर फायरवॉल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी ने इनके ऊपर काम किया हो फायरवॉल्स के ऊपर तो वो ये बहुत अच्छी तरह से समझता है कि साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। इस तरह से UTMs जो हैं जो कि एक एडवांस्ड फॉर्म है फायरवॉल्स की जो कि नेटवर्क पेरीमीटर के ऊपर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा कोई और थ्रेट मैनेजमेंट के या थ्रेट आइडेंटिफिकेशन के टूल्स हैं लाइक कोई पोस्ट बेस्ड IDS वगैरह आप लोग यूज कर रहे हैं तो वो किस तरह से कॉन्फ़िगर करने हैं तो उसके लिए भी
साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल जो है ना वो आप के जहन में होते हैं कि इस तरह से इसको हमने अप्लाई करना है। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं थ्रेट आइडेंटिफिकेशन की, वो 3 तरह से मतलब वो इस चीज़ को लेकर चलता है। फॉर एग्जांपल एक तो पैटर्न मैचिंग है, जिसको आप सिग्नेचर बेस्ड भी कहते हैं, कि नॉन अटैक्स जो हैं उनका पता होता है कि ये इनका मैकेनिज्म क्या है, और उन नॉन अटैक्स के मैकेनिज्म को देखते हुए या पैटर्न्स को देखते हुए सिग्नेचर्स डेवलप कर लिए जाते हैं, और वो सिग्नेचर्स जो हैं वो अपने मेलवेयर, एंटी मेलवेयर वगैरह में आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं या अपडेट कर देते हैं, तो वो आपकी प्रोटेक्शन जो है वो आप अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो नॉर्टन एंटीवायरस है या कैस्पेसिटी है, ये इनके जो लाइव अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, उसमें न्यू सिग्नेचर जो है वो साथ साथ पुश होते रहते हैं। दूसरा मेथड जो है एनॉमली बेस्ड है, जिसमें कि आप एनॉमलिस बिहेवियर जो है किसी भी प्रोसेस का या किसी प्रोग्राम का या किसी भी एक ऐसे सिस्टम का जो कि अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल है, तो उसको फ्लैग अप करके और उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, या अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ हो। ह्यूरिस्टिक अप्रोच एक तीसरी अप्रोच है, जो कि आप रूल्स वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक के शेल स्क्रिप्ट्स में इस तरह की कमांड में आमतौर के ऊपर वो एक्सिक्यूट नहीं होनी चाहिए अनलेस के वो मैन्युअली एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सिक्यूट कर रहा हो, तो उसका आप रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि इस तरह की कमांड जब भी एक्सिक्यूट हो किसी प्रोग्राम के थ्रू, तो फ्लैग अप हो जाए या वो डिटेक्ट हो जाए या वो प्रिवेंट हो जाए, जो भी आपने जिस तरह से भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है इसको। थोड़ी सी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जैसा कि आपको जानते ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्कीम है या एक ऐसा बिहेवियर है कि हम लोग ये किसी भी मशीन में या रोबोट में या कंप्यूटर सिस्टम में ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक मिमिक करने की कोशिश करते हैं, या उसको उस तरह के एक्शंस को सिस्टम्स में डालने की कोशिश करते हैं। तो दो जेनेरिक बिहेवियर्स हैं जो हम समझते हैं कि जो ट्रेडिशनली समझा जाता है कि इनको अगर सिस्टम्स में या रोबोट्स में या प्रोग्राम्स में अगर आ जाएं, तो हम समझेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो अचीव हो गया। एक तो है लर्निंग बिहेवियर और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, थर्ड एक बिहेवियर भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होना चाहिए। वो है एक्टिंग रैशनली, मतलब जो भी मशीन या सिस्टम परफॉर्म करे उसका कुछ ना कुछ रैशनल या रीजनिंग होनी चाहिए कि ये उसने स्टेप क्यों परफॉर्म किया है, या ये कोई भी काम क्यों किया है, या कोई प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया है, वगैरह वगैरह। सही। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो कि जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें एक फीचर डाला जा रहा है जिसमें कि ऑटो नेविगेशन या सेल्फ ड्राइव की एक फंक्शनैलिटी होती है कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर उसने जाना तो पहले वो खुद ही रूट कैलकुलेट करेगा। तो हो सकता है कि रूट जो है वो शॉर्टेस्ट रूट ना हो, लॉन्ग रूट हो, लेकिन वो लॉन्ग रूट लेने के भी उसके कोई ना कोई रीजनिंग होगी कि शॉर्टेस्ट रूट के ऊपर हो सकता है ट्रैफिक जैम हो या कोई रोड कंडीशंस किसी और वजह से ठीक ना हो, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है कि प्रोग्राम जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा वो उसके पास कोई ना कोई रैशनल भी होगा उसका कि उसने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों किया है, राइट। ह्यूमन इंटेलिजेंस ट्रेट्स क्या हैं? एक तो लर्निंग की ट्रेट है जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है या रैशनलाइजेशन है, परसेप्शन बिल्डअप है। परसेप्शन बिल्डअप का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी एक कंट्री में से बहुत ज़्यादा अटैक्स जनरेट हो रहे हैं, तो एक परसेप्शन बिल्डअप हो सकता है कि प्रोग्राम का कि इस कंट्री के ये जो एरिया है यहाँ से बहुत ज़्यादा अटैक्स आते हैं, तो इसको थोड़ा एग्रेसिवली इसको सर्च आउट करना है, नेटवर्क ट्रैफिक को या इंटरनेट ट्रैफिक को या व्हाटएवर जो भी वेब सर्वर के ऊपर ट्रैफिक आ रही है या जिस तरह भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहें। ठीक है, तो उस परसेप्शन के ऊपर आप थोड़ा सा एग्रेसिवली उसको वॉच कर सकते हैं, या जो भी आपने फंक्शंस जो हैं इम्प्लीमेंट करने हैं वो कर सकते हैं। एक और पॉइंट जो है वो यूजिंग लैंग्वेज का है। फॉर एग्जांपल आपने सिरी की एग्जांपल सुनी होगी। सिरी जो है वो एआई बेस्ड प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब हम लोग जो इंग्लिश समझते हैं तो उस हवाले से इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना उसमें आपके साथ बात करता है। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरे रोबोट्स वगैरह
डेवलप किए जाते हैं जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन जिनके साथ होती है, तो उसमें लैंग्वेज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ये पार्ट भी है कि यूजिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो है वो यूज करें। कुछ एग्जांपल जो हम डे टू डे देखते भी आ रहे हैं वो है कि वेब सर्च है। गूगल वेब सर्च जो है वो गूगल ये कहता है कि हम एआई बेस्ड सर्च इंजन जो है ना हमारा है, और मतलब एआई बेस्ड हम सर्च का परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा यूट्यूब या गूगल या अमेजोन के ऊपर अगर आप कोई चीज सर्च करें तो उसके हवाले से रिकमेंडेड दूसरी सर्चेज जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो शो करवाना शुरू कर देता है। ये जो रिकमेंडेशंस हैं या जो इवन ऑटो कंप्लीट है, ये भी एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स के थ्रू अचीव हो रहा होता है। इसके अलावा सिरी, जो आपने सब वाकिफ होंगे इससे, सिरी या एलेक्सा काफ़ी पुराना प्रोग्राम है। आई एम श्योर इसके नए वर्जन्स भी अवेलेबल होंगे। ये भी एआई बेस्ड ह्यूमन स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम्स हैं। इसके अलावा जो न्यू कार्स हैं, स्पेशली टेस्ला का जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स या ऐसी कार्स जो कि ऑटोनमस काम कर रही होती हैं, तो वो एक एग्जांपल है। इसके अलावा ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग एंड कंपीटिंग सिस्टम्स इन गेम्स। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी ऐसी गेम्स भी खेली हों Recording in progress. घर ही ले जा रहे आई एम सॉरी, मेरा ख्याल मेरा सिस्टम शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, उसने खुद ही अपडेट करना शुरू कर दिया और डिस्कनेक्ट हो गया। मेरा ख्याल है कि हम इस स्लाइड के ऊपर थे, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे कि जो एआई की एप्लीकेशंस हैं या इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो हमें रियल लाइफ में कहाँ पे देखने को मिलती हैं। एक तो हमने जिक्र किया कि वेब सर्च इंजन्स में फॉर एग्जांपल गूगल क्लेम करता है कि उसका जो सर्चेज हैं वो एआई बेस्ड सर्चेज परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा आपने अगर देखा हो, नोट किया हो कि यूट्यूब में, गूगल में या अमेजोन में जो ऑटो कंप्लीट है या रिकमेंडेशंस वो शो कर रहा होता है, तो वो भी एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स से शो कर रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच, Yes, sir. Please continue. अच्छा, जी प्लीज। इसके अलावा जो ह्यूमन स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स हैं जैसे सिरी या एलेक्सा का आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एलेक्सा काफी पुराना सॉफ्टवेयर है, श्योर के कोई नया वर्जन भी इसके अवेलेबल होंगे। सिरी जो है वो तो हम मतलब जो आईफोन्स वगैरह है उसमें कॉमन एक फीचर है। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसमें कि टेस्ला एक एग्जांपल है कि वो ऑटोनमस कार्स हैं जिसमें ऑटोमेटिक रूट आइडेंटिफिकेशन हो सकती है या ऑटो ड्राइव या सेल्फ ड्राइव का फीचर्स भी उसमें इम्प्लीमेंटेड है। तो ये सारे जो हैं ये एआई बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा कई बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो कि एआई बेस्ड हैं, जिसमें कि कंप्यूटर और यूजर जो है ना वो आपस में प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल चेस एक एग्जांपल मतलब बड़ी कॉमन सी है कि ऐसी चेस प्रोग्राम्स भी डेवलप हो चुके हैं जो कि एआई बेस्ड हैं। वो एक दफ़ा किसी अच्छे प्लेयर के साथ खेलते हैं और अगर वो लूज कर जाएं तो नेक्स्ट टाइम वो उस चीज से लर्न करते हुए अच्छी मूव्स जो है वो करते हैं, और जो यूज जो उसका अपोजिंग प्लेयर है उसको
उसकी मूव को काफी बेहतर तरीके से वो डॉज कर सकते हैं। जो चैलेंजिंग टेक्नोलॉजीज आज के दौर में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी हैं जो जिसमें कि हमें बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं और जिसमें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करते हुए इसको सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जिस टेस्ला की हमने एग्जांपल दी, इस तरह और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो अपनी लॉन्च करने जा रही हैं। फॉर एग्जांपल निसान की एग्जांपल है, टोयोटा है, या और बहुत सारी कंट्रीज में उनके मैन्युफैक्चरर्स जैसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है प्रोड्यूस करना शुरू हो गए हैं। सैटेलाइट सिस्टम्स एक नई टेक्नोलॉजी है, ऑल्दो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका जो प्रोलिफरेशन है बहुत ज़्यादा हो रही है। IoT एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आज से शायद 10 साल पहले उस तरह से ना हो जिस तरह से कि अब है। बहुत ज़्यादा इसकी डिप्लॉयमेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं आइंदा आने वाले सालों में। तो इस वजह से ये भी एक ऐसे चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर के साइबर सिक्योरिटी का काम उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से कि इसकी डिप्लॉयमेंट्स हो रही। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो कि बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर भी हम मतलब देखते हैं कि डिप्लॉय होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको थोड़ा देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे रियल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक एटलीस्ट जो 15% कार्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी रोड्स के ऊपर। लेकिन अगर हम ये देखें कि जितने भी इनिशिएटिव्स हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स ले रही हैं, अगर वो सारे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30% कार्स रोड्स के ऊपर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगी। इसमें चाइना और इंडिया देखा होगा कि इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसीज जो हैं वो मतलब उन्होंने बना ली हैं और उसके ऊपर वो अमल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा यूरोप में और US में तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो दो कोर इश्यूज हैं वो दो कोर एरियाज हैं जो कि इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के, वो है एक कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल्स, सेकंड जो है वो ऑटोनमस बिहेवियर जिसमें कि सेल्फ ड्राइविंग और इस तरह से दूसरे ऑटोनमस बिहेवियर्स हैं उसके। अटैक्स जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर हो सकते हैं वो डॉस अटैक हो सकता है, फॉल्स डेटा इंजेक्शन है, मॉडिफिकेशन है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, प्राइवेसी इश्यूज हैं। आप मतलब इसमें एक बेसिक सा एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग जो है, इसमें फॉर एग्जांपल 20% चार्ज है, ये 80% चार्ज है, या 100% है। तो जरा इमेजिन करें कि आपका जो व्हीकल है वो 30% चार्ज है लेकिन वो आपको 80% शो कर रही है। तो अटैकर्स ऐसा कर सकते हैं कि इसमें आपके जो चार्जिंग स्टेशन है उसको हैक कर लें, या फिर जो कार है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको हैक कर लें, उसके जो चार्जिंग सिस्टम है उसको मिस इंटरप्रेट करवाना शुरू कर दें। ठीक इसी तरह से बैटरी लाइफ है, आपको पता ही होगा कि हर बैटरी जो है उसकी एक अपनी चार्ज साइकिल्स होते हैं और उसकी अपनी एक लाइफ होती है। ये भी कंप्रोमाइज हो सकती है कि आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा से डिप्लीट होनी शुरू हो गया, जबकि इसका जो अपने एल्गोरिदम्स हैं जो इसकी लाइफ को मेंटेन रखते हैं वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। NFC बिलिंग जो इवन इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बिलिंग है वो NFC बेस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बिलिंग में भी फ्रॉड हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट ना किया हुआ हो सिस्टम्स को। जो व्हीकल्स हैं ऑटो स्टार्ट स्टॉप हो सकती हैं हैकिंग के थ्रू। रूट आइडेंटिफिकेशन है वो मिसलीड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो इम्प्लीमेंट होते हैं उसमें वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में है वो उनकी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन इन साइलोस। फॉर एग्जांपल अगर टेस्ला है तो टेस्ला अपना ही एक काम कर रहा है, वो उसके अपने ही प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी अपनी ही सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो किसी से बाकियों से शेयर नहीं होती। इस अगर निसान इस तरह अपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है तो उसकी भी बिल्कुल इसी तरह से अपना साइलोस में काम हो रहा है। तो जब तक वो चीज़ें आपस में शेयर नहीं होंगी जैसे कि IT इंडस्ट्री में हो रहा होता है, उस वक्त तक जो है वो प्रॉपर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बिल्डअप नहीं हो सकता। दो एग्जांपल्स जहाँ पे मैंने लिखी हैं, एक टेस्ला का जो है वो कुछ ऐसा पहले ड्रोन के थ्रू हैक की गई थी। एक और उससे कुछ अर्सा और पहले अगर देखा जाए तो टीनेजर जो है उसने 25 टेस्ला कार्स को जो
रिमोटली हैक किया था और उसके डोर्स को लॉक अनलॉक किया था, विंडोज को लॉक अनलॉक, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप किया था, म्यूजिक खुद ही ऑन कर दिया था वगैरह वगैरह। इस तरह के सारे फंक्शनैलिटीज उसने रिमोटली परफॉर्म की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो बहुत जल्दी से सामने आएगा वो है सैटेलाइट सिस्टम्स का। हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं वो हर साल लॉन्च होते हैं। पिछले कुछ अरसे से अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी हो, उसमें चाइना और इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो एक ही मिशंस में लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जांपल 40 सैटेलाइट्स है, 45 सैटेलाइट्स इंडिया ने एक ही शटल के साथ लॉन्च कर दिए थे। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगले 10 ईयर्स में 17,000 नए सैटेलाइट्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में मौजूद होंगे। जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी हैं ही हैं, लेकिन ये नया एडअप होगा। तो ये क्यों ज्यादा हो रहे हैं? मतलब जो कुछ तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक वेदर फोरकास्टिंग है, या इस तरह की दूसरी चीजें हैं लाइक टेलीकम्युनिकेशंस हैं। इसके अलावा जो नई 5G टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सैटेलाइट सिस्टम्स के ऊपर। GPS टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। IoT डिवाइसेस जो हैं वो सैटेलाइट सिस्टम को यूज करते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना डेवलप एस्टेब्लिश करेंगी। इसके अलावा जो नॉर्मल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड्स हैं या पावर स्टेशंस हैं या इस तरह की दूसरी फैसिलिटीज हैं जो कि बहुत क्रिटिकल हैं, वो भी सैटेलाइट सिस्टम्स को यूज करते हुए अपनी कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो तो ये है कि सैटेलाइट सिस्टम है कि वो वही टेलीमेट्री, लॉन्ग रेंज टेलीमेट्री स्पेक्ट्रम यूज कर रही होती हैं जो कि बाकी सारे यूज करें, मतलब एक ही तरह का सिस्टम यूज करें। तो इसका मतलब है कि जितने भी सिस्टम है सारे वल्नरेबल हैं अगर एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाए तो। ठीक है। इसके अलावा जो उनका अपलिंक डाउनलिंक है उसके लिए वो टेलीकॉम नेटवर्क जो है ना वो ग्राउंड के ऊपर जो यूज कर रहे होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है IoT डिवाइसेस का, कि IoT डिवाइसेस किस तरह से सैटेलाइट को यूज करेंगी अपनी कम्युनिकेशन के लिए। IoT डिवाइसेस ज़्यादा खुद काफ़ी वल्नरेबल हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमारे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हैं। ठीक है। अभी मैं सर्च कर रहा था तो एक हैकासैट नाम से एक इवेंट अरेंज हो चुका है जो कि अप्रैल 14 से गालिबन लॉन्च हुआ है। ये US का जो एयरफोर्स है उनका एक लैब है, रिसर्च लैब है, एयरफोर्स रिसर्च लैब। उन्होंने एक ये लॉन्च किया है एक कंपटीशन जिसमें कि वो ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे सैटेलाइट को हैक करें और उसके बाद जो है वो अगर सक्सेसफुली उन्होंने कुछ स्टेप्स वगैरह या प्रूफ स्टेप फॉर्म किए और प्रूफ दिया कि हमने इस तरह से इस सैटेलाइट को हैक किया तो उसको प्राइज मनी भी एक होगी। 10,000 प्राइजेस इसमें मौजूद हैं। IoT का आपको बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा, गालिबन आप में से जो IoT के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। इसके सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। स्मार्ट होम में, एडल्ट केयर में, मेडिकल एंड हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, मैरीटाइम, एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह। ठीक है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक 25 बिलियन IoT डिवाइसेस जो हैं वो मार्केट में मौजूद होंगे, मतलब डिप्लॉयड होंगे। So AI will continue to be integrated in IoT implementations. जो इसकी ज़्यादा स्प्रेड है IoTs का वो 5G नेटवर्क की वजह से आएगा। तो जैसे ही 5G कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी तो इसकी डिप्लॉयमेंट जो है ना उसी तरह से तेज़ हो जाएंगी। इसके सिक्योरिटी इश्यूज मोस्टली वही हैं जो कि आम ट्रेडिशनल IT नेटवर्क्स के साथ होते थे, लाइक इसमें भी वीक ऑथेंटिकेशन के इश्यूज होंगे, unencrypted messages के SQL injection, man in the middle attacks, poor handling of security updates, lack of endpoint protection apps वगैरह, और lack of firewall। तो ये वो या poor firewall implementation, ये वो issues हैं जो कि IoTs जो है ना वो टेक्नोलॉजी अपना फेस करेगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स जो पहले ज़माने में ऐसा था कि जितने भी बड़े बड़े डिप्लॉयमेंट्स थी लाइक ग्रिड्स वगैरह, पावर ग्रिड्स वगैरह है या पावर जनरेशन प्लांट्स हैं या ये जो माइनिंग के प्लांट्स हैं या जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, वो अपने पास जो सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करते थे वो मैनुअल सिस्टम्स होते थे।
इनको डम्प सिस्टम्स भी बोलते थे कि वो उनके अपने पास डिसीजन मेकिंग जो थी ना उस तरह से एक तो थी भी नहीं, दूसरा वो मैनुअली सारे कंट्रोल होते थे। तो अभी जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स जो इम्प्लीमेंट है ना वो तीन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऑटोमेट करना स्टार्ट कर दिया है। इवन पाकिस्तान में भी जितने भी नई डिप्लॉयमेंट्स होते हैं उसमें ये ज़रूर कंसीडर किया जाता है कि इसमें ICS वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रॉब्लम ये है कि पहले पहले जो ICS डिप्लॉयमेंट्स होती थी उसमें एक एयर गैप होती थी फ्रॉम द इंटरनेट, लेकिन अभी जो उस एयर गैप जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी जगहों पे खत्म होता जा रहा है। इस वजह से कि वो इनकी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि साइबर स्पेस में भी देना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। एयर गैप जो सिस्टम है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है एज कम्पेयर टू दो सिस्टम तो कनेक्टेड विद द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल आपने ईरान का वो जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर अटैक सुना होगा, वो भी अगर आप उसकी डिटेल्स देखें तो सिस्टम भी एक गैप था, वो USB के थ्रू ब्रीच हुआ जिसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियर प्लांट था वो इन्वेस्टमेंट प्लांट जो डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, बहुत दूसरे कुछ क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो जैसे टेलीकॉम है या पावर जनरेशंस हैं जिसमें डैम्स भी आ जाते हैं, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, और जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि आप देखें कि वो ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं IT के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली अगर आप मार्केट में देखें तो इन सारे डिप्लॉयमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सॉल्यूशंस जो मौजूद हैं वो बहुत ही नाकाफी। फॉर एग्जांपल जो OT के हवाले से देखें या ICS के हवाले से देखें तो अगर आप उसकी कोई फायरवॉल लेना चाहें तो बहुत ही मुश्किल से आपको चंद एक नाम मिलेंगे फायरवॉल्स के लिए, और उनकी डिप्लॉयमेंट्स भी बिल्कुल मतलब डेवलपमेंट बिल्कुल न्यू है, कोई 3-4 साल पुरानी डेवलपमेंट जो है ना वो आपको ज़्यादातर नजर आएंगी। तो ये बहुत इमेच्योर अभी टेक्नोलॉजी है जो कि इसको टाइम लगेगा काफ़ी इसको मैच्योर होने के लिए। तो इस जितनी भी हमने डिस्कशन की उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई वो ये है कि इसमें जो चैलेंजेस हमें क्या नज़र आएंगे जो कि आइंदा आने वाले सालों में हमें होंगे, जिसके लिए कि हमें AI की ज़रूरत पड़ेगी। एक उसमें मेजर चैलेंज जो है वो सोशल इंजीनियरिंग का है। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थ्रेट फैक्टर है आज के टाइम के ऊपर। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पुराने ज़माने में जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो अटैक्स थे वो ज़्यादा पॉपुलर होते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव होती गई, जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस थे वो काफ़ी अच्छे बनते गए और उनकी डिप्लॉयमेंट्स काफ़ी होती गई। जो IT डिपार्टमेंट था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था, उसकी ट्रेनिंग अच्छी होती गई, और जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोटेक्शन थी वो काफ़ी इम्प्रूव होती गई। लेकिन जो वीक पॉइंट रहा वो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट का रहा है। फॉर एग्जांपल जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल जो चीफ लेवल के लोग हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, डायरेक्टर्स हैं, उनके सेक्रेटरीज हैं, ये वो लोग हैं जो जिनकी ट्रेनिंग्स नहीं है। तो इस चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। आई एम श्योर कि आप लोगों को इसके काफ़ी आइडिया होगा। फिशिंग ईमेल्स जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अटैक है, मोर देन 85% जो अटैक्स हैं वो ईमेल्स के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं। उसकी रीजनिंग यही है कि ईमेल्स जिनको टारगेट किया जाता है वो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, वो इजीली लिंक्स को भी ओपन कर लेते हैं, इजीली चीज़ों को फॉरवर्ड भी कर देते हैं, उनको मैनिपुलेट करना काफ़ी ईजी होता है। एक और रीज़न जो है जो वो है ये एक और चैलेंज जो है वो है सोफिस्टिकेशन इन अटैक्स। आल्दो बहुत सारे अटैक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ट्रेडिशनल किस्म के हैं और वो लॉन्च किए जाते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा टारगेटेड अटैक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी हैकर ग्रुप ने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है तो वो अपने अटैक्स में सोफिस्टिकेशन लाता है, उसके कस्टमाइज करता है अपने अटैक को, और उसके बाद डेफिनेटली अगर उसने एक दफ़ा ये बात ठान ली कि इसको कंप्रोमाइज करना तो उसने कर देना है, उसका कोई और हल नहीं है। उसको आप उसके प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं उस अटैक की, और उसके जो उसका जो इम्पैक्ट आएगा उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसको सक्सेसफुल होने से रोकना एक इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा जो पुअर विजिबिलिटी रिजल्ट्स इन पुअर आइडेंटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल IoT के सिस्टम में अगर आप सिलसिले में अगर आप देखें तो उसमें
हंड्रेड्स ऑफ नोड्स जो हैं आप डिप्लॉय कर देते हैं किसी भी सिस्टम में, तो नॉट नेसेसरीली कि वो सारे के सारे आपको विजिबल भी हों। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें जिसकी विजिबिलिटी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा इशू है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस इंप्लीमेंट करने के लिए, स्पेशली आजकल के टाइम में जबकि वर्क फ्रॉम होम का एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, तो उसमें आप के पास बहुत ही कम चांस बचता है कि आप अपने सारे सिस्टम्स को जो है वर्क फ्रॉम होम वाले सिस्टम्स को भी आप प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा जो एक और चैलेंज है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग जनरेटेड बाय एवरी डिवाइस। अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 सर्वर्स लगे हुए हैं या 4 सर्वर लगे हुए हैं, तो अगर आप किसी एक सर्वर को भी देखें तो बहुत सारे लॉग्स जो जनरेट कर रहा होता है, जिसमें कि आपके सिक्योरिटी लॉग्स हैं, एरर लॉग्स हैं, इंफॉर्मेशन लॉग्स हैं, इसके अलावा और बेतहाशा किस्म के लॉग्स होते हैं। तो एक सर्वर के अंदर अगर वो थाउजेंड्स ऑफ लॉग्स जनरेट कर रहा हो, तो 5 सर्वर्स के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा लॉग्स जो है ना वो जनरेट हो जाते हैं। और ये एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल मैंने दी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 100 सर्वर्स हैं या 200 सर्वर्स हैं, तो वो किस तरह लॉग्स जनरेट करेंगे, उनकी नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वो कितने लॉग्स जनरेट करेंगे। इवन अगर आप वो सेम सोल्यूशन भी इम्प्लीमेंट कर दें तो भी ये मुमकिन नहीं है कि वो सारे लॉग्स को इन डेप्थ जो है वो एनालाइज किया जाए और उसमें थ्रेट आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो इस ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी एआई के जो है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। जीरो डे अटैक्स जो हैं वो आए दिन चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है और लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, इसी तरह से जो अटैकर्स हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होती जा रही है। तो वो अटैकर्स जो हैं वो उनके तादाद ज़्यादा होने का एक अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि उनको जो अटैक्स जो लॉन्च कर रहे होते हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ अटैक्स आ रहे हैं, जीरो डे अटैक्स। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक मैकेनिज्म जो है वो एआई प्रोवाइड कर सकती है। एक बहुत बड़ा इशू जो कि पिछले कुछ अरसे से देखने में आ रहा है वो है कि जो अटैकर्स हैं वो ज़्यादा खुद एआई बेस्ड अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं। इसके बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्पैम्स के हवाले से देखा जाए तो अगर कोई एक स्पैम आइडेंटिफाई हो गया है किसी भी एक मेल सर्वर के ऊपर, तो एआई बेस्ड एनालिसिस करने के बाद वो स्पैम की नेचर को चेंज कर देते हैं और दोबारा से उस सर्वर के ऊपर लॉन्च करते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो उस दफ़ा पास थ्रू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई एक मेलवेयर है वो किसी भी एक एंटीवायरस ने या एंटी मेलवेयर ने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसमें ऐसी चेंजेस की जा सकती हैं एआई के थ्रू के वो उस चीज़ को बाईपास कर दे। तो ये एआई चूंकि कंप्यूटराइज्ड टेक्निक है और कंप्यूटराइज्ड टेक्निक का मतलब है कि उसमें कंप्यूटेशनल पावर बेतहाशा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत सारे जो ऑप्शंस जो है ना वो एकदम से जनरेट करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर एक एबिलिटी नहीं है कि बहुत सारी कंप्यूटेशंस जो है वो एक साथ कर ले या बहुत सारे सिनेरियोज एक साथ वो जनरेट करके उसको इम्प्लीमेंट कर दे। इसके अलावा जो है क्रिमिनल ग्रुप्स आर इवॉल्विंग देयर टेक्निक्स, नेशन स्टेट एक्टर्स आर शिफ्टिंग देयर टारगेट्स, ransomware continues to grow as a major threat, working from home presents new challenges। या ऑलरेडी इनके हवाले से कुछ ना कुछ बात हो चुकी है। ransomware आई डोंट नो कि आप लोगों का ये नजर से गुजरा हो कि ransomware ने पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की है, स्पेशली ये कोविड के टाइम पे और इवन कोविड से कोई 1 साल पहले से इसका जो दोबारा हाइक आई है वो काफी नोटिसेबल है। और आपको पता ही है कि रैंसमवेयर का ऐसा अटैक है जो कि अगर एक दफ़ा वो सक्सेसफुल हो जाए तो उससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके बारे में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हुए इससे बच सकते हैं, और इंक्लूडिंग वन ऑफ द टेक्निक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं कि एआई को हम कैसे साइबर सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एआई इज अडैप्टिव इन नेचर, क्योंकि इसमें लर्निंग कैपेबिलिटीज होती हैं, इसमें अपने एक्सपीरियंस से भी लर्न करता है और हम खुद भी ट्रेनिंग देते हैं। तो इसकी वजह दो कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है अपने न्यू एनवायरनमेंट में और चेंजिंग एनवायरनमेंट में। ऑटोमेटेड थ्रेट डिटेक्शन टू कीप अप विद साइबर क्रिमिनल्स, मतलब कि जिस तरह साइबर क्रिमिनल्स अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं तो उसी तरह से एआई भी अपने आप को एआई एल्गोरिथम अपने आप को इवॉल्व करते रहेंगे।
AI जो है वो किस तरह से मतलब हम इम्प्लीमेंट करेंगे? कंटिन्यूअल लर्निंग का एक फीचर है. फॉर एग्जांपल AI यूज्ड मशीन एंड डीप लर्निंग टू अंडरस्टैंड नेटवर्क बिहेवियर एंड क्लस्टर आइडेंटिफाइबल पैटर्न्स. जैसे हमने पहले जिक्र किया कि सीम सोल्यूशन में कि बहुत सारे लॉग्स जो जनरेट होते हैं उसमें वो एक तो बिहेवियर्स को लर्न कर रहा होता है और उसके अलावा और डिफरेंट नोड्स के ऊपर जो लॉग्स पड़े हुए तो उनके एक जगह क्लस्टर करता है, उससे वो पैटर्न मैचिंग जो है या पैटर्न आइडेंटिफिकेशन जो है बड़ी इजी हो जाती है. सही है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि मैं जिस ऑफिस में आजकल जाता हूँ उसमें थर्ड फ्लोर के ऊपर है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो ऑफिस है मैं आज तक वहाँ पे नहीं गया. कुछ 6 साल हो गया मुझे वहाँ पे जाते हुए, लेकिन कभी एक दफा भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किसी ऑफिस में नहीं गया. लेकिन अगर मैं बिल फर्स्ट चला जाता हूँ तो वो पिछले 6 साल में एक इंसिडेंट होगा और ह्यूमन बीइंग का आई डोंट नो कि वो आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन अगर वो लॉग्ड होगा तो AI बेस्ड एल्गोरिथम जो है डेफिनेटली उसको आइडेंटिफाई कर लेगा एज एन एनोमली. ठीक है, उसको फ्लैग अप कर लेगा. तो ये आइडिया ये है कि जो मिलियंस ऑफ लॉग्स हैं या इवन बिलियंस ऑफ लॉग्स हैं तो उसमें से अपनी यूज की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने मतलब की इंफॉर्मेशन कैसे उसको निकालनी है. तो ये एक काम जो है वो AI बेस्ड एल्गोरिथम्स तो कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मल एल्गोरिथम जो है ना वो ये काम नहीं कर सकते. हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसकी अभी बात हुई. एलिमिनेटिंग टीडियस टास्क. फॉर एग्जांपल जो पैटर्न मैचिंग है, अगर आपने कोई एक ऐसा बिहेवियर आइडेंटिफाई किया है कि जो कि किसी भी एक नेटवर्क में मौजूद था और वो आपके नॉलेज में है कि इस तरह का भी कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो सकता है, तो किसी भी दूसरे नेटवर्क में उस तरह का बिहेवियर आइडेंटिफाई करना बहुत सारे डेटा में से काफी मुश्किल काम है. लेकिन अगर आप AI बेस्ड एल्गोरिथम्स लगाएंगे तो वो आप उसको आइडेंटिफाई करना काफी इजी हो जाएगा. ठीक है. Outcomes of using artificial intelligence. IT asset inventory. The AI provides organizations with the consistently updated information about hardware and software users, behaviors and performances. ठीक है. इसका मतलब यह है कि जो AI बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं वो ना सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एसेट्स को अपने पास सेव रखते हैं बल्कि यूजर्स और उनके बिहेवियर्स को भी अपने पास सेव करके रखते हैं. बिलफर्ज एक यूजर अगर किसी टाइम के ऊपर छुट्टी के ऊपर चला गया है और उसकी जगह पे दूसरा यूजर आके काम करना स्टार्ट हो गया है, तो अगर तो उसने दूसरे यूजर को आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब है कि उसका प्रोफाइल भी वो आइडेंटिफाई कर लेगा. अदरवाइज वो उसको AI सिस्टम उसको फ्लैग अप कर देगा कि ये एक अनआइडेंटिफाइड बिहेवियर जो है ना उसको फेस करना पड़ रहा है. ठीक है. सेकंड जो आउटकम है वो है इफेक्टिवनेस इन कंट्रोल. दिस टेक्नोलॉजी कैन ऑटोमेटिकली असेस security effectiveness and analyze opportunities for improvement in company networks. AI जो है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ये प्रपोज भी करता है कि ये इशू है और इसका आपने काउंटरमेजर इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है. तो इस या काउंटरमेजर क्या है? एक कंट्रोल ही की एक टाइप है कि आप फॉर एग्जांपल अगर कोई यूजर जो है वो बहुत इजी टू यूज इजी टू रिमेंबर पासवर्ड रखना शुरू हो गए हैं तो AI बेस्ड सिस्टम क्या करेगा कि उसको रिकमेंड करेगा कि आप इसके पास फ्रेजेस वगैरह बनाने शुरू कर दें या इसकी पासवर्ड लेंथ ज्यादा करनी शुरू कर दें वगैरह वगैरह. ठीक है. फिर है जी एक्सप्लेनेशन. AI कैन बी प्रोग्राम्ड नॉट जस्ट टू असेस सिस्टम्स एंड मेक देम मोर एफिशिएंट बट आल्सो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस फॉर important company stakeholders. This factor is vital for acquiring buy-in from organization leaders and user alike. एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू जो कि IT इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है वो बजट अप्रूवल्स का होता है. अगर कोई भी डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट या इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अगर एक वीकनेस फील करता है कि सिस्टम में या नेटवर्क में ये कोई इशू है और उस इशू को काउंटर करने के लिए उन्हें कोई फॉर एग्जांपल आईडीएस इंप्लीमेंट करना है या नई फायरवॉल इंप्लीमेंट करनी है, तो ये बात मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट को समझाने के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला होता है कि हमें इस चीज़ की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है. तो AI बेस्ड सिस्टम हमारे ये हेल्प कर सकते हैं कि उसके एक रैशनल प्रोवाइड करके हमें दे दें कि हमारे पिछले 1 साल में इस कंट्रोल के ना होने की वजह से ये इश्यूज आए हैं
और अगर ये कंट्रोल लग जाता तो हम इन इश्यूज को आगे फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे जो रिपोर्ट्स हैं या ऐसे जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं अपने हायर मैनेजमेंट को बताने में भी, और अगर आपके कोई जॉइंट वेंचर्स वगैरह मौजूद हैं तो आपके पार्टनर्स को बताने में भी ये बड़े हेल्पफुल हो सकती हैं। अच्छा जी, एआई एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो है कि न्यू थ्रेट डिटेक्शन के जो भी जीरो डे अटैक्स फॉर एग्जांपल हैं, अगर वो नॉर्मली सिग्नेचर बेस्ड या नॉर्मली बेस्ड के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए यूज करें तो वो इतने इफेक्टिव नहीं है जितने के एआई बेस्ड सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने से होते हैं। ठीक है जी। सेकंड इसमें है बॉट ब्लॉकिंग। बॉट्स का आप लोगों को आइडिया होगा कि बॉटनेट्स या इवन बॉट्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं ओवर द इंटरनेट। अगर आप कभी नेटवर्क ट्रैफिक को, जो इंटरनेट की ट्रैफिक है, उसको देखने का मौका मिला हो तो उसमें मोस्टली जो ट्रैफिक जा रही होती है वो बॉट्स की जा रही होती है। बॉट्स में कुछ तो मेलिशियस बॉट्स होते हैं, कुछ जो हैं वो लेजिटिमेट बॉट्स हैं। लेजिटिमेट बॉट्स में आपने क्रॉलर्स का नाम सुना होगा, जो वेबसाइट क्रॉलर्स हैं। अगर मतलब इसको देखें तो क्रॉलर्स जो हैं हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटीज जो हैं किसी भी सर्वर के ऊपर या किसी भी नेटवर्क के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो एआई बेस्ड सिस्टम्स होंगे वो इन दोनों को आइडेंटिफाई इजीली कर लेंगे एज कम्पेयर टू जो सिग्नेचर बेस्ड या बिहेवियर बेस्ड सिस्टम्स होंगे, क्योंकि क्रॉलर्स में आए दिन चेंजेस आती रहती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं बनती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स उनकी कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होती हैं। तो इतने सारी चेंजेस ओवर द इंटरनेट आ रही हैं, उनको ट्रेडिशनल सिस्टम्स में मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऐसी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एआई बेस्ड जो है सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा हेल्पफुल है। ब्रीच प्रिडिक्शन, आप ये भी प्रोग्राम कर सकते हैं कि लाइक इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं, कोई मलिशियस एक्टिविटीज जो हैं वो किसी भी एक इंडस्ट्री के ऊपर मौजूद है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरामको के ऊपर इस तरह की जो स्पेसिफिक टाइप की मलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म की गई हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि यही मलिशियस एक्टिविटीज जो हैं ओजीडीसीएल के ऊपर भी आ सकती हैं। तो ये जो एक ब्रीच प्रिडिक्शन का एलिमेंट है ये एआई तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। इस बिल्कुल इसी तरह से एक और वेबिनार में मैं मौजूद था तो उसमें बात हो रही थी, तो एआई बेस्ड सिस्टम्स की हवाले से ही बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे सिस्टम्स भी मौजूद है जिसमें कि ये भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कोई भी शख्स जो है वो कौन सा क्रिमिनल जो है परफॉर्म करने जा रहा है, या कोई बम ब्लास्ट करने जा रहा है, या कोई ऐसा बैंक रॉबरी करने के लिए जा रहा है। तो वो कैसे पता चलता है? होने से पहले कि वो उनकी जो डिफरेंट प्रोफाइल्स वगैरह जो है उनको वॉच करता है सिस्टम, उनके टेलीफोन कॉल्स को वॉच करता है, वो किस किस ग्रोसरी स्टोर पे गए हैं, किस किस ग्रोसरी स्टोर पे किस किस तरह की शॉपिंग की है, वो सारी चीज़ों को एक तरह से वो अपने पास एनालाइज करता है और उसकी प्रेडिक्ट कर देता है कि ये शख्स जो है ये फलां तरह का मलिशियस एक्ट जो है परफॉर्म करने जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जो मेलवेयर के जो ब्रीच है या सिस्टम की या आईटी सिस्टम की ब्रीच है उसको इसी तरह से प्रिडिक्ट की जा सकती है। जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल अभी मतलब मोस्टली लोगों के पास जो एंटीवायरसेस वगैरह चल रहे होते हैं उसमें यही 2-3 तरह की टेक्नोलॉजीज यूज हो रही होती हैं, जिसमें सिग्नेचर बेस्ड, नॉर्मल बेस्ड वगैरह। लेकिन बहुत जल्द ऐसा होगा कि जो अच्छे एंटीवायरसेस होंगे या अच्छे एंटी मेलवेयर्स होंगे वो एआई बेस्ड जो है डिप्लॉयमेंट्स जो है ना वो विविड पैटर्न मैचिंग या जियो लोकेशन वगैरह सबको देखते हुए वो सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। यूजर ऑथेंटिकेशन का एक मेजर इशू है। आई डोंट नो कि आप में से किसी ने ये चीज़ नोटिस की हो, लेकिन मैं चूंकि इस इंडस्ट्री से काफ़ी पहले से वाबस्ता हूँ तो मुझे पता है कि जो यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं इनको याद रखना यूजर्स के लिए एक बहुत ही टीडियस टास्क होता है। इवन के मैंने ऐसे यूजर भी देखे हैं कि उन्होंने अपना पासवर्ड जो है वो लिख के अपने कीबोर्ड के नीचे लगाया हुआ होता है, या कुछ को ऐसा भी देखा है कि उन्होंने मॉनिटर के ऊपर ही लगाया हुआ होता है कि अगर भूल ना जाए ये पासवर्ड। तो ये क्यों होता है? मतलब ये इस वजह से है कि यूजर को काफी मसले मतलब को अच्छा नहीं लगता कि वो पासवर्ड को बार बार एंटर करें, या इजी टू रिमेम्बर पासवर्ड वो रख लेते हैं, या कुछ ऐसा पासवर्ड अगर वो लंबा रख भी लें तो उसको कहीं ना कहीं अपने सामने रख लेंगे क्योंकि वो
याद नहीं रख सकते, या बहुत सारे किसी भी यूजर के बहुत ही सारे अकाउंट्स होते हैं, इसका सारों का पासवर्ड याद रखना उसके लिए मसला होता है, तो वो उन पासवर्ड्स को लिख लेते हैं। तो ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए भी आप एआई टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं कि किसी भी यूजर को बाय फेस आइडेंटिफाई कर लेगा, बाय वॉइस आइडेंटिफाई कर सकता है, या उसके किसी भी बिहेवियर को, उसका टाइपिंग बिहेवियर को, या किसी भी दूसरी तरह के बिहेवियर को वो आइडेंटिफाई करके उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। अगर बिलफर्ज वो यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो उसको रीऑथेंटिकेट भी वो कर सकता है कि इसका जो टाइपिंग बिहेवियर है वो चेंज हो गया, तो हम इसको रीऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सही, ये सब कुछ कैसे होगा? एआई के थ्रू होगा। ऑटोमेट रिस्पॉन्स टू अ सिक्योरिटी ब्रीच। आप इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम के हवाले से अगर देखा जाए तो आप उनके रिस्पॉन्सेज को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर ब्रीच आइडेंटिफाई हुई है या कोई ऐसा मिलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हुई है तो उसने क्या करना फर्दर, उसको या तो वो ड्रॉप कर देगा या उसको टीयर डाउन कर देगा या वट जो भी उसने करना है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू एआई। आल्दो ये काम आप नॉन एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से ये इफेक्टिवनेस जो है वो काफी ज्यादा आप अचीव कर सकते हैं। फिशिंग का एक ऐसा इशू है जो कि बहुत अरसे से इंडस्ट्री में मौजूद है, आईटी इंडस्ट्री में, और ये एक ऐसा इशू है जिसको इसको हल करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स हो चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो अक्रंस है वो उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से आज से कोई 10 साल पहले मौजूद थी। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जो मोर देन 90% जो ईमेल्स या 92% ईमेल्स जो हैं वो सब स्पैम ईमेल्स होती हैं, और उन स्पैम ईमेल्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी होते हैं जो कि फिशिंग टाइप की ईमेल्स होती हैं। आज ही मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था तो 56 मिलियन फिशिंग ईमेल्स जो है ना वो हर रोज ऑन एवरेज सेंड होती हैं। तो उसमें फिशिंग ईमेल्स का मतलब है कि वो जिस यूजर के पास गई हैं वो उसको क्लिक भी कर सकता है। तो 82 सेकेंड्स चाहिए किसी भी यूजर को विक्टिमाइज्ड होने में उस अटैक से जो कि फिशिंग में गया है। मोस्टली जो आईटी बेस या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लोग हैं वो तो इस चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन आईटी पीपल जो हैं वो जो फिशिंग ईमेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होता है। उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग चाहिए, कंटिन्यूस रिफ्रेशर्स चाहिए इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि फिशिंग ईमेल्स क्या होती हैं और उनसे कैसे बचना है। ठीक है, लेकिन एआई बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं इनको डिप्लॉय करके हम ये जो फिशिंग ईमेल्स हैं इनको सेंड होने से या किसी भी मेल बॉक्स में रिसीव होने से हम रोक सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एआई जो एक है ना वो एक डबल एज सॉर्ड है। स्पेसिफिकली अगर फिशिंग की बात करें तो एक स्टडी मैंने देखी थी तो उसमें बता रहे थे कि जो एआई बेस्ड फिशिंग ईमेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन राइटेड ईमेल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फिशिंग ईमेल्स हैं वो एआई बेस्ड अगर जनरेटेड होंगी तो इसका मतलब है कि वो इजीली वो आइडेंटिफाइबल नहीं होंगी और एंड यूजर तक पहुंच जाएंगी और अपना अटैक जो है वो लॉन्च कर देंगे। इसलिए हमें इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है कि जो हम काउंटर मेजर्स हैं वो भी एआई बेस्ड काउंटर मेजर्स हम इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल इसी तरह से रैंसमवेयर का जो इशू है वो भी हम एआई बेस्ड सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करके हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में जो रैंसमवेयर है उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, स्पेसिफिकली इन यूएसए और उसके बाद किसी हद तक यूरोप में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इसमें इसका नुकसान हो चुका है पिछले कुछ सालों में, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री। बल्कि 2 साल पहले एक न्यूज़ मैंने देखी थी तो उसमें किसी यूरोपियन कंट्री में एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के ऊपर अटैक आया था जिसकी वजह से एक बच्चे की डेथ हुई थी। दैट वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट डेथ कॉज्ड ड्यू टू द रैंसमवेयर। आई गेस वो यूरोप नहीं था, यूएसए था। तो मतलब इस हद तक भी हो सकता है कि वो ह्यूमन लाइफ को थ्रेट भी हो सकता है उस किसी भी अटैक की वजह से। तो किसी भी रैंसमवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए या अर्ली स्टेज के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपके पास एआई बेस्ड सोल्यूशन अगर होंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सोल्यूशंस, राइट।
अनफॉर्चुनेटली जैसी अभी बात हुई है कि एआई बेस्ड जो सिस्टम्स हैं वो हम अपने डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अटैकर्स भी अपने अटैक्स लॉन्च करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमने जो अभी दी थी वो एआई बेस्ड फिशिंग अटैक्स थे। बिल्कुल इसी तरह से जो मेलवेयर जो है एआई बेस्ड मेलवेयर प्रोडक्शन भी हो सकती है, एआई बेस्ड रिकॉनेसेंस भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। मतलब जिस तरह से ह्यूमन माइंड जो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकता है, बिल्कुल वो नेगेटिव सेंस में भी यूज हो सकता है। दूसरे इश्यूज जो हैं उसमें यह है कि एआई बेस्ड जो एक्टर्स हैं, जो बैड एक्टर्स हैं, वो डेटा पॉइजनिंग का जो वो भी कर सकते हैं। डेटा पॉइजनिंग का मतलब है कि जिस डेटा से एआई बेस्ड एल्गोरिथम को ट्रेनिंग देनी है वो डेटा ही खराब हो चुका है। सही। तो इसके अलावा जो जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क्स के मतलब के जो नॉर्मल नेटवर्क्स हैं, बिल्कुल इस तरह से एआई बेस्ड सिस्टम अपना एक पैरेलल नेटवर्क क्रिएट करके और उससे मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी एक्चुअल नेटवर्क को, राइट। इसके अलावा मैनिपुलेटिंग एल्गोरिथम, चूंकि एआई बेस्ड एल्गोरिथम जो है वो ज़्यादातर खुद सेल्फ लर्निंग होते हैं, तो बहुत बड़ा इशू जो ये समझा जाता है कि एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स अपनी मर्जी से नए एल्गोरिथम्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू जो है वो समझा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो इस नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी सामने रखना है किसी भी एआई इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को भी सामने रखना है। आई होप आज की जो वेबिनार था वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा आप लोगों के लिए। तो अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो यो आप मतलब पूछ सकते हैं, चैट के ऊपर पूछना चाहें या लाइव पूछना चाहें, आप जैसे आप मैसेज समझें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्लीज वन बाय वन अगर क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज करें, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। Recording in progress. Yes, Khalil, please ask question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने सारा समझाया। सर आपने बात की थी सिक्योरिटी बोर्ड्स के बारे में, मतलब उसके रिलेटेड एआई और सिक्योरिटी के। सर अगर इस तरह तो फिर ऐसा फील होता है कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर जैसे हम बॉट्स काम कर रहे हैं, और बेशक वो सिक्योरिटी बेस्ड है, अगर वो अटैकिंग के लिए भी यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी के लिए अगर यूज किए जाएं तो सर फिर इस तरह तो ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और जो एथिकल हैकर हैं इनको ये रिप्लेस कर देंगे। इस क्वेश्चन को मैं पहले अपना नाम बताइए और किस डिपार्टमेंट से हैं आप? सर मेरा नाम खलील और रहमान है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, इस जो आपका जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में देखे ना फिर इसको डिस्कस करते हैं। एक जेनेरिक सी परसेप्शन है कि अगर आप के पास अगर कोई काम मशीन करना शुरू कर दे तो जो ह्यूमन बीइंग है जो कि पहले वो काम किया करता था वो बेरोजगार हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपका क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है कि अगर आप सिक्योरिटी बेस्ड सिस्टम्स जो हैं वो सारे ऑटोनमस हो जाएंगे तो फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो एक तरह से उनका काम बाकी नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है। जॉब्स जो हैं वो शिफ्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ज़माने में साइकिल बहुत ज़्यादा होते थे तो साइकिल के जो कारीगर होते थे या मैकेनिक होते थे वो भी मौजूद होते थे, लेकिन फिर वो गाड़ियां आ गई तो साइकिलों के मैकेनिक बेरोजगार हो गए। अपेरेंटली ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो जो गाड़ियों के लिए भी मैकेनिक चाहिए था। जो साइकिलों के मैकेनिक थे उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करके वो गाड़ियों के मैकेनिक बन गए। जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया वो लोग बेरोजगार हो गए। बिल्कुल इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर अगर आप ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोनॉमस सिस्टम्स भी तो किसी लोगों ने बनाए हैं, सही है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से वो जिन लोगों ने बनाए हैं उनकी जॉब्स क्रिएट होनी शुरू हो गई, और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो कि मैन्युअली काम करते थे उनकी जॉब्स जो है वो काम होनी शुरू हो गई। तो ये एक शिफ्ट है एक जॉब नेचर से दूसरी जॉब नेचर के अंदर। तो आइडिया ये है कि आपने अपना जो अपने आप को अप टू डेट रखना है और उस जॉब के लिए तैयार करना है जो कि अगले 5 साल या 10 साल में मार्केट में डिमांडिंग हो। सिंपली सीसीएनए कर लेना, फॉर एग्जांपल सीसीएनए भी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन सिंपली सीसीएनए कर लेना या इस तरह की कोई और छोटी मोटी सर्टिफिकेशन कर लेना या बीएस कर लेना, ये आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेगा अनटिल अनलेस के आप कुछ ऐसा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या ऐसी एक्सपर्टीज डेवलप ना करें जो कि मार्केट डिमांडिंग हो। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जी सर बिल्कुल। सर थोड़ा सा एक बात और, सर इसका कोई डिसएडवांटेज भी बता दें अगर है तो। किस चीज का? एआई इन द सिक्योरिटी, क्योंकि सारे सर बेनिफिट्स हमने अभी तक पढ़े हैं। नहीं, हमने लास्ट में इसका डिसएडवांटेज भी पढ़ा है सर वो इस तरह से है या डिसएडवांटेज इस तरह से है कि एआई जो है जिस तरह से सिक्योरिटी इंडस्ट्री अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के लिए यूज कर रही है, बिल्कुल इसी तरह से जो हैकर्स हैं वो भी एआई को यूज कर रहे हैं। उसमें से एक एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी वो हमें देखी थी, वो फिशिंग ईमेल्स को क्रिएट करने के लिए हमने देखी थी कि अगर एआई बेस्ड एल्गोरिथम जो है वो इतने अच्छे फिशिंग ईमेल्स जनरेट करते हैं कि जो कि जो सिस्टम्स जो हैं या एंटी फिशिंग या एंटी स्पैम सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सही है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से जो बैड एक्टर्स हैं वो मैलवेयर्स भी जनरेट कर सकते हैं एआई के थ्रू। मतलब ये जो काम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल कर सकता है वो काम जो अटैकर है वो भी कर सकता है। ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हैंड रेज करें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एआई किसी भी सिस्टम को डिफेंड करने के लिए हम यूज करते हैं कोई सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए ये भी हो सकता है कि हम बाद में उसको डिफेंड करने के बाद अपने सिस्टम को काउंटर भी मारें एआई के जरिए। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एथिक्स हैं वो इस चीज को प्रिवेंट करते हैं कि आप काउंटर अटैक लॉन्च करें। जो जिस चीज को एथिकल समझा जाता है वो यही है कि आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अगर किसी के घर में खुदा न खास्ता कोई चोरी हो जाती है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाएगा,
पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो उस चोर को आइडेंटिफाई करेगा और उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए कोर्ट में लेकर जाएगा। लेकिन आप किसी भी सिस्टम के एलिमेंट में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि वो जो चोर है उसके घर में भी वापस चोरी करवाई जाए। मतलब ये एक इलॉजिकल सी चीज है ना। बिल्कुल इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ये चीज जो है वो अच्छी नहीं समझी जाती कि आप काउंटर अटैक लॉन्च करें। आल्दो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस चीज को बड़ा पसंद करती हैं, लेकिन वो शायद आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते उनकी, मतलब उसको एग्जाम्पल कोट नहीं किया जा सकता। Okay, sir. Dr. Ramna wants to talk with you. She is veteran of Information and Cybersecurity Student Club. Please, ma'am, unmute yourself. जी प्लीज। Thank you so much, sir. I really appreciate your time, taking your time for such a valuable information you have provided for student. You explained very well. सर एक्चुअली अभी ये बात स्टूडेंट भी कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी, मे बी आप उसके ऊपर भी थोड़ी इंसाइट इनको दे दें। लाइक डीप फेक का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, डीप फेक का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जिसमें आप क्या कहते हैं वीडियोस में भी डीप फेकिंग करके एक्चुअल वो लगता है कि उस बंदे की इवन वॉइस भी वैसी ही जनरेट कर रहे होते हैं, मूवमेंट भी सारा कुछ, तो वो भी तो एआई को करके कर रहे होते हैं ना। अभी मैं कुछ दिनों एक वीडियो देख रही थी, उसमें कोई ऐसे उन्होंने वो शो किया हुआ था कि लाइक इंस्टाग्राम से किसी की इमेजेस लेके और एक वीडियो क्रिएट की गई थी। डेफिनेटली उसमें एआई यूज हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा बड़ा डेटा सेट चाहिए होगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो लोग पब्लिकली बहुत सारी इस तरह की अपनी इमेजेस वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। उन्होंने फ्यू सेकेंड की वीडियोस बना के ना, हालांकि वो उस पर्सन की नहीं थी, लेकिन वो एक्चुअली कहीं से इवन जो सिक्योरिटी के एनालिस्ट एनालाइज भी कर रहे थे, तो उन्हें अपेरेंटली ये नहीं लग रहा था कि ये उसकी वीडियो नहीं है। लेकिन बाद में फिर जब वो डिटेल उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि इन्होंने भी एआई को यूज करके जो डीप फेक का कॉन्सेप्ट है उस पर अप्लाई करके ना तो वो वीडियो जनरेट की गई थी। तो बेसिकली ये भी यूज हो रहा है, एआई को यूज कर रहे हैं, मतलब अटैकर यूज कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो ये बेसिकली ये ड्रॉबैक्स ही हैं इसके। जी बिल्कुल। एक्चुअली जो आइडिया ये है कि अगर कोई एआई का एल्गोरिदम अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल के पास है तो ये एल्गोरिदम अटैकर के पास भी है। Exactly. तो अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए यूज कर सकते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जहां तक अभी आपने जिक्र किया डी फेक का, तो आज सुबह एक डिस्कशन हो रही थी, हमारा एक ग्रुप है, तो उसमें आप आई एम श्योर कि आप लोगों को राफी बलोच का नाम पता होगा। एक नॉन पाकिस्तानी हैकर है जो कि आजकल पीटीए में काम कर रहे हैं। तो उनकी बनाई हुई एक डीप फेक वीडियो जो है वो उन्होंने शेयर की थी, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई कि वो आइडेंटिफाई ना हो सके। ऑल्दो इसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स भी मौजूद हैं, लेकिन अगेन वो भी आप एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स को यूज करते हो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा एक बैच है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो इसको डिजिटल फोरेंसिक्स का जो है वो पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। तो हम लोग एक्चुअली उन लोगों को तैयार कर रहे हैं कि FIA वगैरह के लिए, IB वगैरह के लिए ऐसे अदारों के लिए हम लोग उनको तैयार करवा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमने अभी कमिंग डेज में एक उसको क्या बोलेंगे, एक प्रेजेंटेशन समझ लें या एक उनका प्रोजेक्ट समझ लें कि डीप फेक के हवाले से केस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका फोरेंसिक्स कैसे करना है। तो उसमें हम लोग यही देखेंगे कि क्या क्या मेथोडोलॉजीज हैं कि जो सेपरेट करती हैं एक एक्चुअल वीडियो में को और एक फेक वीडियो में, राइट। तो आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे ऐसी चीज़ों को देखने के लिए। तो अगर आप में से भी कोई चाहे तो हम उस एक प्रेजेंटेशन में आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। So definitely it will be great for us, great opportunity for our student. जी बिल्कुल। एक्चुअली आइडिया ये है कि जो डीप फेक है वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो आइडेंटिफाइबल ना हो। ये इसका क्रक्स है इस पूरी टॉक का। तो उस पे अभी रिसेंटली रिसर्च तो बहुत ज्यादा हुई है कि इस किस्म के एल्गोरिदम डेवलप कर लिए जाएं कि वो आइडेंटिफाई, मतलब हो तो डेफिनेटली जाएगा, लेकिन इट्स मेक मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। एग्जैक्टली। मतलब आप ये देखें कि अगर
एक NSA के पास वो एल्गोरिथम चल रहा है तो वो पब्लिक में तो अवेलेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं होगा। अगर बिलफर्ज मैं चाहूँ कि मैं फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की या किसी भी एक्टर की या टॉम क्रूज की कुछ इस तरह की जनरेट करना चाहूँ तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी जो है वो किसी ऐसे अदारे के पास है जिसके पास के बहुत अच्छा एल्गोरिथम चल रहा हो। ठीक है, और सिर्फ एल्गोरिथम नहीं चाहिए, उसके अलावा उसके बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज हैं जिसने कि उस वीडियो की रेंडरिंग करनी है। पहले तो उसने उसके फीचर सेट को आइडेंटिफाई करना है, वो एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद उस फीचर सेट से उसने नई वीडियो जो जनरेट करने हैं बजाते खुद एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इसके लिए बहुत सारे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए। स्पेशली AI के इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए एज कम्पेयर टू नॉन AI एल्गोरिथम्स, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो AI के बहुत अच्छे एल्गोरिथम्स डेवलप हो चुके हैं वो कॉमन पब्लिक की रीच में नहीं है। Yes, please, Haris, ask question. सर मैंने रोड मैप के बारे में पूछना था कि अगर हम अभी मतलब प्रोग्रामिंग भी करते हैं तो बस CCNA भी कर लेते हैं नेटवर्किंग के लिए, तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हम अच्छा एक एथिकल हैकर बन सकें? सर्टिफिकेशन के बारे में पूछना। अच्छा, एक्चुअली मैं जो चीज़ रिकमेंड करूँगा वो ये है कि अपने जो आपके टीचर्स हैं उनके साथ आप एक अच्छा सा रिलेशनशिप अदर दैन योर टीचिंग एस्टेब्लिश करें और उनसे गाइडेंस लें कि क्या क्या रोड मैप हो सकता है। जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज थी लाइक सिंपली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, CCNA है, MCSE है, एथिकल हैकिंग है। ऑल्दो पाकिस्तान में एथिकल हैकिंग का काफ़ी मतलब एक कल्चर सा बना हुआ है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को एथिकल हैकिंग से रिलेट कर रहे होते हैं लोग, और उसकी रीज़न भी यही है कि बहुत सारे एथिकल हैकर्स जो थे वो पहले ही मर्ज हो गए और लोगों को उसी तरह से जो एजुकेट किया गया, जनरल पब्लिक को भी उसी तरह से एजुकेट किया गया। लेकिन एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं। उन चीज़ों को एक्चुअली टैप करने के लिए आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो गाइडेंस जो है वो आपको आपके टीचर्स देंगे। उनसे बेहतर गाइडेंस आप खुद बाहर से लेना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीज़ें जिसको मैं मतलब आजकल देख रहा हूँ वो इसमें से AI का काफ़ी मतलब इन होगी साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में रादर। इसके अलावा IoT बहुत इन होगी, IoT के अंदर साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा ब्लॉकचेन, और क्या हो सकता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ये ऐसी नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर शॉर्टफॉल होगा जो हमारे ट्रेन स्टाफ है या ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एक चीज को आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, और जैसे कि मैंने बताया कि अपने किसी ना किसी टीचर को अपना मेंटोर बना के तो फिर उसके साथ काम करें, तो आई एम श्योर कि आप ग्रेजुएट करने के बाद किसी अच्छी जगह पे मतलब जा सकते हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो कि आल्दो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन जो हमें प्रैक्टिकली फेस करना पड़ता है एज अ प्रोफेशनल, वो ये है कि जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं ग्रेजुएट होने के बाद, उनका बिहेवियर जो है वो उस तरह का नहीं होता है जो कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में चाहिए होता है। सो इस प्लेटफॉर्म से मैं अगर आप में से जो टीचर्स वगैरह हैं उनके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि उनके बिहेवियर ट्रेनिंग जो है वो भी एक मस्ट होना चाहिए, और हो सके तो किसी एक सेमेस्टर से ज़्यादा उसको टाइम देना चाहिए ताकि जो काम करने के काबिल हों स्टूडेंट्स में, काम करने के एक्चुअली हैंड्स ऑन काम करने के काबिल। जी प्लीज नेक्स्ट। Students, do you have any more questions? Okay, sir, I think students के लिए question और नहीं है. Thank you so much for giving us your valuable time. No, pleasure is all mine. It has been very nice to talk to you. Thank you so much, sir. Sir, in the last, I would ask you,
add something about guide the student to how to prepare themselves for the market. Actually, अभी जैसे आपने क्वेश्चन बोला कि ethics पे देने की बहुत जरूरत है. स्टूडेंट में वो टेम्परामेंट नहीं होता कि वो काम करें या वो प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं होता, तो वो थोड़ा सा इनको गाइड कर दें कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट और व्हाट आर यू आर लुकिंग फॉर देम इन. आप लोग क्या चीज देख रहे होते हैं उनमें और वो चीज उनमें नहीं होती. सबसे बड़ी चीज जो या सबसे बड़ा इशू जो है जो स्टूडेंट्स में होता है और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बिल्कुल नहीं होता, वो उनका कैजुअल एटीट्यूड होता है. फॉर एग्जांपल, टीचर ने कोई असाइनमेंट दी, उन्होंने आधी कर ली और मैम से कह दिया, सर से कह दिया सर आधे नंबर दे दें, सर 60 नंबर दे दें, सर पास कर दें, सर उसको इतने दिए तो मुझे भी इतने दे दें. जो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में होता है इस तरह से है कि अगर आपको ये काम कहा जाए कि आप ये स्टेप परफॉर्म करना है तो उसका 100% डिलीवर करना होता है, और प्लस उससे एसोसिएटेड अगर 2-3 काम और हैं तो वो भी साथ करने होते हैं. तो उसमें ये नहीं होता कि मुझे आधे नंबर दे दें या उसको दिए तो मुझे भी दें. उसमें स्ट्रेट अवे आपका ये ओके होता है या रिजेक्ट होता है. अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि जो शहबाज शरीफ साहब का कोई विजिट हुआ था लाहौर का, तो उसमें पीटीवी ने प्रॉपर कवरेज नहीं दी, और उस कवरेज ना देने की बहुत सारी उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि उनके पास कोई अच्छा सा लैपटॉप नहीं था, उनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं था कि इसमें वो अपलोड कर सकते, वगैरह वगैरह. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कवरेज ना होने के वजह से को 5-6 लोग जो थे वो फायर हुए. कहने का मतलब आपको ये है कि जो जॉब आपने बहुत मेहनत से हासिल की होगी वो ऐसी चीजों से बिल्कुल खत्म हो सकती है, और एक दफा ऐसी जॉब इस तरीके से जॉब खत्म हो जाए तो दूसरी जगह पे जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होता है. पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जॉब मार्केट बहुत ही छोटी है, तो सिर्फ अपने बिहेवियर की वजह से ये है कि मतलब काम को पूरा ना करना, टाइम पे काम कंप्लीट करके ना देना, ये बहुत दूसरा बड़ा इशू है. कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक सबॉर्डिनेट को ऑफिसर को एक काम दिया, तो आज को 2 हफ्ते हो गए, उसने मुझे ना ही उसका कोई रिस्पॉन्स दिया ना ही वो काम करके दिया. मैं जब भी 2-3 दफा उससे पूछा तो वो बिल्कुल वैसे ही बहाने बनाता है जैसे कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बनाते होते थे. तो एक्चुअली ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है. सही. तो अपना एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल तब्दील करना है कि एक ऐसा काम, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें कि अगर काम दिया है तो काम करना है. एक तरीके से नहीं होता दूसरे तरीके से करना है, दूसरे से नहीं होता तीसरे तरीके से करना है, लेकिन काम डिलीवर करना है. ये मेन जो इशू है ना वो ये होता है. जी मैम, आप कुछ और कहना चाह रही थी? Okay, thank you so much, such a valuable suggestions. Hopefully ये लोग भी थोड़े ये एटीट्यूड हम भी देख रहे हैं ग्रेजुअली. मेरा ख्याल है आजकल स्टूडेंट में ये चीज बल्कि ज्यादा बढ़ती जा रही है. पहले स्टूडेंट को एक असाइनमेंट मिलती थी, वो करके आता था, गलत करता है ठीक करता है, अब वो करता ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं डालता कि बस हो जाएगी, नहीं करेंगे तो बस वो कॉपी पेस्ट करके तो फॉरवर्ड हुई होती है. ये चीज बहुत ज्यादा हो गई, और डेफिनेटली ये फिर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वो कैरी ऑन होती है ये चीजें. जी बिल्कुल, मेहनत करने की आदत नहीं है. मतलब मेहनत, अपनी एफर्ट्स जो है ना वो मतलब वेस्ट करते हैं, अपनी एफर्ट्स वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं. ये टाइम जिंदगी में कभी वापस नहीं आना. तो अपनी एफर्ट्स को ठीक जगह पे लगाना सीख लें, इसी टाइम पे वो जो है ना वो सीखा जाएगा, अदरवाइज बाद में बड़ा मसला होगा. प्रैक्टिकल लाइफ में इतना टाइम ही नहीं होता कि आप कोई नई चीजें लर्न कर सकें. तो वो एआई के सोल्यूशन ढूंढ रहे होंगे कि कोई हमें एआई का ऐसा सोल्यूशन बन जाए कि हमारी असाइनमेंट्स भी जनरेट करके दे दे, हमारे टास्क भी जनरेट करके दे दे. ऐसा ही है, ऐसे. Anyhow, Thank you so really much, sir, nice for talking the to you. valuable information. Thank you, sir. Thank you so much for your Welcome. time. Thank you very much. And I look forward for further collaboration with you, some workshops, hopefully. Oh, no problem. I will be there to work with you anytime. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you so Thank you much. very much. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Record.